Hello and welcome. You're watching this special broadcast of the Buck Stops here, and tonight we're coming to you from Mahim Chowpatty in Mumbai. Remember, the Buck Stops here is on the road to 2014. Every night, we're never in the studio. We're always broadcasting from the field, bringing you special ground reports as well as interviews with the key newsmakers on the campaign trails, as well as voices of people from different constituencies that you never ever hear in Delhi. On the program today, an exclusive interview with Uddhav Thackeray, who's charging Sharad Pawar for having wanted to join the NDA this time. And Uddhav Thackeray claims that he's the one who blocked Sharad Pawar's entry into the NDA. Mr. Pawar, of course, is saying these allegations are rubbish. That interview will be coming up in just a few minutes. But also coming up on the program today, our Chai Stop segment. Today from a special Irani cafe. And over Bun Maska Chai, we ask why so many film stars are migrating to politics. Do you think that what you've seen of film stars in politics so far has been impressive? Ma'am, basically what I think is, as you talk about Govinda, Dharmender, Hema Malini, they are joining politics after their film career is almost to an end. So you're saying कि जब यहाँ खत्म हुआ तब कुछ और exactly, ma'am. So I think it raises a concern that whether they have included politics as their retirement plan or something like that. From Mahim Chowpatty, our special broadcast from Mumbai starts with an exclusive interview with Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray. A number of controversial remarks in this interview, the most controversial being that Sharad Pawar wanted to join the NDA this year and the Shiv Sena and other regional leaders of the BJP blocked his entry. In the past few weeks, we have seen a series of extremely strong editorials in the Shiv Sena mouthpiece Samna by Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray, taking quite a strong position against some differences with the BJP, especially of course former party president Nitin Gadkari's meeting with Raj Thackeray. Of course, the latest editorial says that all is now well with the BJP, but the editorial interestingly also talks about being careful of modern day Aurangzebs and questioning whether Nitin Gadkari actually took the permission of the BJP before he met with Raj Thackeray. Now remember, in Maharashtra, this is the Shiv Sena's first Lok Sabha election after Balasaheb Thakeray's death, and it is a challenging time. Where does the BJP Shiv Sena relationship stand now? Is there any chance at all of a reconciliation between Raj Thackeray and Uddhav Thackeray? However unlikely that seems. To answer this and much more, joining us now is the Shiv Sena chief Uddhav Thackeray. नमस्कार. नमस्कार उद्धव जी. पूछना चाहूंगी आपसे कि आप मानेंगे कि पहला चुनाव है, बाला साहेब की डेथ के बाद आप एक तरह से फेस कर रहे हैं. आपके लिए उनकी एब्सेंस एक नई मुश्किलात क्रिएट करती है? मुश्किल नहीं, लेकिन कमी तो हमेशा मैं महसूस करता हूं, करूंगा. ये तो जिंदगी भर रहेगी मेरे जीवन में. पॉलिटिकली बात करें तो मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है और पॉलिटिकली हम नहीं कहीं पे कम पड़ेंगे. वो तो कमी मैं कभी महसूस नहीं होने दूंगा. बहुत सारे विचार, उनकी ताकत, उनके आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्वाभाविक है वो तो कमी हमेशा रहेगी. और पॉलिटिकली आपको लगता है कि एक तरह से इट्स मेड द शिवसेना वीकर, क्योंकि बार बार सवाल उठते हैं आफ्टर बाला साहेब हु? अब आप देखती हो कि लगभग कितना 1 साल 1.5 साल हो गया और शिवसेना जहां थी वहां से और आगे आई है. एक अलग सा बंधन मैं महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं शिवसैनिक और मेरे बीच में. और ये सारे लोग सिर्फ सैनिक नहीं, हमारे परिवार के लोग हैं. आप ये कह रहे हैं, हालांकि रिसेंटली आपके 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टी छोड़ के गए हैं, आपके स्पोक्स पर्सन राहुल नार्वेकर ने एनसीपी ज्वाइन कर लिया. देयर इज अ परसेप्शन दैट देयर इज डीप रिबेलियन एंड फैक्शनलिज्म. परसेप्शन एक बात होती है. ये तो फैक्ट्स है कि एमपी छोड़ के गए हैं. नहीं, फैक्ट है वो 3-4 लोग चले गए, लेकिन परसेप्शन क्या था कि शिवसेना टूटी. वो शिवसेना कहां टूटी?
पर एक सीनियर लीडर मनोहर जोशी जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो भी आज भी और मेरे साथ उनको है। फिर शिवसेना ने मतलब स्लोगन्स देके उनको एक पब्लिक फंक्शन से बोला कि आप जाइए यहाँ से। ठीक है। तो दिस इज ओपन फैक्शनलिज्म इन अ सेंस। ठीक है, लेकिन बाद में आज भी मनोज जोशी जी मेरे साथ है, हमारे साथ है। और रही बात इन 2-3 लोगों की, 1-2 लोगों को तो मैंने टिकट नहीं दिया था, बाकी लोग जहां गए क्या वो वहां से चुनकर आ सकते हैं, देखेगा। तो योर सिंह कि आपको फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को कोई चोट नहीं पहुंची है कि ये लोग उठ के चले गए? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, शिवसेना कोई कल निर्माण हुई ऐसी पार्टी नहीं है। 40-45 साल हो गए, बीच में कई लोग आए, कई लोग चले गए, लेकिन शिवसेना कभी टूटी नहीं। और शिवसेना खत्म करने के सपने बहुत सारे लोगों ने देखे, लेकिन वो सपने रहे। बीजेपी के साथ आज आप रिलेशनशिप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मुझे मालूम है कि आपने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सामना में कहा है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट जो आरएसएस के करीब भी माने जाते हैं, नितिन गडकरी, जब मैंने उनसे वही सवाल पूछा जो आज आपने उठाया है। मैंने उनसे पूछा, नितिन जी, डिड यू टेक परमिशन और सैंक्शन ऑफ द बीजेपी बिफोर यू मेट विद राज ठाकरे? उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की परमिशन लेने के लिए, मैं तो बीजेपी की हित में ये मीटिंग करने गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एंटी कांग्रेस एनसीपी वोट स्प्लिट हो। उन्होंने मुझे यहां तक कहा कि राज ठाकरे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार थे। उद्धव ठाकरे के रिस्पॉन्स, शिवसेना के रिस्पॉन्स ने सब मामला बिगाड़ दिया। बरखा जी, इस विषय पर मुझे लगता है कि अब कुछ बोलने जैसा बाकी रहा नहीं। जो सवाल मैंने उठाया था कि क्या आपने पार्टी के अध्यक्ष जी की परमिशन ली है, कल उठकर मेरे पार्टी से कोई जाकर किससे मिलकर आएगा, कैसे चलेगी पार्टी? इसलिए पार्टी में जो लेवल्स है कि अध्यक्ष होता है, फिर और जो बातें होती है वो इसलिए है कि पार्टी की नीति क्या होनी चाहिए, तो पार्टी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। नितिन गडकरी एक्सीडेड हिज ब्रीफ। नहीं, क्या ठीक है, अपने पार्टी की एक बात अलग, शिवसेना में बात की थी किससे? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं? वो कहते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, ठीक है, अभी मैं इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि राजनाथ जी ने इसका खुलासा किया है। नरेंद्र भाई मेरे साथ बहुत, नरेंद्र मोदी जी ने आपको फोन किया था जब ये क्राइसिस हुआ, राजनाथ तो वो जी क्या ने बोले आपसे? मैंने आज सामना में लिखा है, दोनों ने मुझे वचन दिया है कि उद्धव जी, हाँ एक बात और कहता हूं, खास कर जब नरेंद्र भाई आए थे, नरेंद्र भाई, आज सारे लोग नरेंद्र भाई जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था, एनडीए की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक समय ऐसा आया था कि मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनको हटाया जाए। बहुत ही दबाव आ रहा था बीजेपी के ऊपर। सहयोगी पार्टी उस वक्त जो भी थी वो सारे के सारे इस पक्ष में थे कि नरेंद्र भाई को हटाओ। सिर्फ बाला साहब ही थे पूरे देश में जिन्होंने ओपन स्टेटमेंट किया था कि नरेंद्र भाई को हटाना नहीं चाहिए। तो ये रिश्ता हमारा अब का नहीं है, तब से है। पर जब आप सामना एडिटोरियल में कहते हैं कि नितिन गडकरी एक व्यापारी हैं जिन्होंने एक मास्टर कर लिया है कि बिना इन्वेस्टमेंट के उनको कैपिटल मिल जाता है, वो खुद बोलते हैं ना वैसे कि वो बिजनेसमैन है। तो जैसे मैं कहता हूं, आज भी कहता हूं कि एक व्यक्ति मतलब पार्टी नहीं हो सकती। पार्टी की जो बाकी सारी लाइन है, ये क्यों बैठे? अध्यक्ष का काम क्या है? आज अगर मैं पार्टी का चीफ हूं तो मेरा काम क्या है? मेरे यहाँ कोई भी कुछ भी करने लगेगा तो कैसे बर्दाश्त करूं मैं? उन्होंने जो ये बयान दिया है कि अलायंस ऑलमोस्ट थ्रू थी, आपको नहीं लगता कि अगर वो मना लेते राज ठाकरे को, लेकिन पता अगर वो मना लेते राज ठाकरे को कि भाई आप लोकसभा चुनाव ना कंटेस्ट करें तो आप लोगों को ये बातें ऐसी इतनी आसानी से नहीं होती। मैंने भी कभी जब बाला साहब नहीं रहे थे तो मैंने भी मेरे इंटरव्यू से कहा था कि चलो कुछ आगे बढ़े। आप, मुझे याद है आपने हमें भी कहा था कि आई एम रेडी टू मीट राज ठाकरे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और पब्लिकली उन्होंने जिस तरीके से इनकार किया वो बहुत ही मतलब हर्ट किया मुझे। और आज के दिन मुझे लगता है कि वो बातें सारी बाजू में रही, क्योंकि आज हम नेशनल इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। ये जो इशू है वो नेशनल इलेक्शन से कोई संबंध नहीं रखता। और एक बात और कि दूसरों से मुद्दे लेकर अपनी पार्टी नहीं चलाई जा सकती है, और एक बार सिद्ध हो गया। आपने एक जरूरी बात बोली कि आपने कोशिश की, दैट यू मेड योर ओन अटेम्प्ट कि आपके और राज के बीच में जो एक दरार है उसको ठीक किया जाए, एंड उनका रिस्पॉन्स हर्ट यू। डिड यू फील एंग्री? डिड यू फील हर्ट? डिड यू फील ह्यूमिलिएटेड? छोड़ो ना, अभी मेरे पास भी बोलने से बहुत सारी बातें, लेकिन वो लोगों के लिए क्या होगा, इसमें क्या मिलेगा? लोग तो आज परेशान है, सरकार नहीं, ऐसी बात है। पर आपकी दोनों की पार्टीज आपकी दोनों की पार्टीज आज सेम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। दूसरा कुछ कर भी नहीं ना सकते हो, और क्या करेंगे? यही तो दुर्भाग्य की बात है उनके लिए
कि जो शिवसेना ने बात कही है पहले, वो आज मजबूरी से उनको कहनी पड़ रही है। और दूसरी बात ऐसी है कि आज एक ऐसी भी नीति हो सकती है कि आप खुद कंफ्यूज हो तो लोगों को कंफ्यूज करो। आप कह रहे राज ठाकरे कंफ्यूज है? मेरे लिए मतलब देखो, जो भी कंफ्यूजन समझ में आ रही बात, तो अपनी जो एक माइंड सेट रहता है, अपना एक माइंड सेट रहता है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। विचार एकदम स्पष्ट होने चाहिए। और इसलिए मैंने नरेंद्र भाई की वो याद दिलाई आपको कि हमने आज नरेंद्र भाई की जय जयकार आज नहीं कर रहे, उस वक्त बाला साहब ने कहा था कि इनको निकालना। पर बाला साहब ठाकरे ये भी चाहते थे that सुषमा स्वराज शुड बी अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। बिल्कुल, वो भी मैंने आपको उत्तर दिया है। वो इसलिए था कि जब सुषमा जी बाला साहब को मिलने आई थी, वो जून जुलाई का महीना होगा, और दिसंबर में, उसके बाद दिसंबर में गुजरात की इलेक्शन हो गई, और उस वक्त नरेंद्र भाई अपने गुजरात की जो स्टेट असेंबली थी उसके कैंपेन के लिए तैयार हो रहे थे, मतलब शुरुआत भी नहीं हुई थी। और दिल्ली में जितने सारे नाम थे उसमें से बाला साहब ने कहा कि सुषमा जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बाला साहब की प्राथमिकता हमेशा रही कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, और अगर आज हम वो कर सकते हैं तो नरेंद्र भाई अच्छा चॉइस है। आपको क्या अश्योरेंस मिला जब मिस्टर मोदी ने आपको फोन किया, राजनाथ सिंह ने फोन किया, राजीव प्रताप रूडी भेजे गए कि ये क्राइसिस किसी तरह रिजॉल्व हो? आपको क्या उनसे ये संदेश मिला दैट वी विल नॉट बी इन एन अलायंस विद द एमएनएस, हम शिवसेना के साथ ही रहेंगे, एंड बी नितिन गडकरी बिना परमिशन के गए थे राज ठाकरे से मिलने? देखो, एक बात तो मैं जवाब दे सकता हूं, सारी बातें कुछ उसके ऊपर पर्दा हो तो अच्छा रहता है। एक बात साफ है, राजनाथ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, वो पब्लिकली भी कहा है। कल देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात, इंटरव्यू आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, एमएनएस की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर को एक लेटर दिया है जिसमें कहा है कि हमारे गठबंधन में इतने सारे लोग हैं, इसके अलावा कोई भी मोदी जी का इस्तेमाल ना करे। और इसके बावजूद अगर कोई दौड़ रहा है तो बट नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स। आपको कोई थोड़ी एंजाइटी है कि चुनाव के बाद हालात बदल सकते हैं? ऐसा लगता है आज मुझे नहीं, ऐसा दिखता है मुझे। आपने कहा यू वर वेरी हर्ट द वे राज ठाकरे रिस्पोंडेड टू योर ओवरचर्स। क्या ये मामला बंद हो गया है? कैन वी सी द टू कजिन्स कमिंग टुगेदर? इससे देश की जो इलेक्शन है लोकसभा, उसका कोई संबंध नहीं है ना इस सवाल का। ये इस बातों पर इसलिए है बिकॉज़ यू आर स्प्लिटिंग द एंटी कांग्रेस एनसीपी। मैं नहीं कर रहा हूं, ये वोट बंट रहा है। मैं नहीं कर रहा ना, मैं तो पहले से बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी के साथ पहले से मैं हूं। और नरेंद्र भाई का नाम जब एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तय करना था, तो एक दिन पहले नरेंद्र भाई और मेरी बात हुई। उस दिन सुबह राजनाथ जी के साथ मेरी बात हुई, और फिर दोपहर शाम को वो ऐलान हो गया, और उसके बाद तुरंत मेरा स्टेटमेंट आ गया सपोर्ट का। मैं रुका नहीं, एक पल भी रुका नहीं, मैंने इमीडिएट स्टेटमेंट दिया। राज ठाकरे का एक स्टेटमेंट कल ही आया है, उन्होंने कहा इफ उद्धव वांटेड टू टॉक टू मी और पैच अप विद मी, व्हाई डिडंट ही कॉल मी डायरेक्टली? उन्होंने मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं फोन किया? एक बात का भी आप उत्तर दो। वो उन्होंने शिवसेना क्यों छोड़ी, किसके कारण? बताइए ना जरा, आप बताइए। नहीं, मैंने तो पढ़ा। आपने, क्योंकि आपने तो कवर किया होगा, उनकी मीटिंग कवर की होगी, आज अखबारों में बात आई है, तो उन्होंने शिवसेना क्यों छोड़ी, किसके लिए, किसके कारण? नहीं, परसेप्शन तो यही है कि there is a power struggle in the शिवसेना, who is the real inheritor of बाला साहेब्स लेगेसी। ठीक है, वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, किसके वजह कारण से मैंने शिवसेना छोड़ी? उद्धव। हाँ, तो उद्धव के लिए, उद्धव से परेशान होकर आपने शिवसेना छोड़ी, तो भाई उद्धव अगर फोन करता तो क्या आप वापस आते? सिंपल चीज है। पर आप अगर मतलब कोई भी किसी से तंग आकर या झगड़ा करके चला गया, तो वही फोन करेगा तो वापस लौट सकता है। ये इतने लोगों को उल्लू ना समझना आप, कि कहने के लिए कुछ भी मैं कहूं और हमेशा लोग मेरे ऊपर विश्वास करें। इतनी आसानी से बात नहीं बनती, इतने आसानी से। और आज मैं जो कहता हूं, जहां भी जाता हूं, लोग देखता हूं मैं कैसे परेशान है लोग, किसान है, कामगार है, सारे लोग। और वो क्या करेंगे इससे? हमारे दोनों के बीच में जो सवाल जवाब होगा उससे उनका पेट कैसे भरेगा? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस तो है ना उधर जी, नहीं है ना, अभी नहीं है। टिल एमएनएस एंड शिवसेना आर सेपरेट, द एडवांटेज विल बी टू कांग्रेस एनसीपी। वो एक जमाना था, जरूर था। और कांग्रेस की नीति यही है कि जब हम कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, तो एक ऐसा कुछ आदमी या पार्टी खड़ी करो कि वो डाइवर्ट करे। तो आप कह रहे हैं कि एमएनएस इज बीइंग क्रिएटेड बाय कांग्रेस? वो बात मैं कांग्रेस की नीति बोल रहा हूं, तोड़ो फोड़ो और
जो अंग्रेजों की नीति थी वही कांग्रेस अपना रही है, और उस जो ये है उनकी नीति है उसमें मैं फंसने वाला नहीं हूं। So you will never pick up the phone and call Raj Thakre? नहीं, मेरा फोकस जो है अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी को महाराष्ट्र से निकालो। तो मेरा जो लक्ष्य है, कहने के लिए मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं नहीं कहना चाहता हूं, नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर मेरा फोकस डाइवर्ट होगा। और कांग्रेस यही तो चाहती है कि उनका पीछा छोड़कर मारे और किसी के पीछे। आप कभी कंसिडर कर सकते हैं दैट यू विल पिक अप द फोन एंड कॉल राज डायरेक्टली? नहीं, आज के दिनों सवाल ही नहीं ना। आज मेरा फोकस सिर्फ कांग्रेस राष्ट्रवादी को हटाना है। आपने अपने सामने एडिटोरियल्स और इंटरव्यूज में ये भी कहा कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जो गली में दादा होते हैं, दिल्ली में लाचार होते हैं। आप हु वर यू रेफरिंग टू? जो यहाँ से कांग्रेस और एनसीपी की ओर से दिल्ली में गए हैं। इज योर रेफरेंस टू शरद पवार? क्यों नहीं, जितने सारे। तो बोलिए ना, सीधा बोलिए that your reference is to शरद पवार। सुनो ना, एक मिनट, सिर्फ शरद पवार क्यों, बाकी भी सारे और लोग हैं ना, जैसे कि सुशील कुमार जी है, सारे लोग हैं, पृथ्वीराज भी वहां थे, आज यहाँ चीफ मिनिस्टर है, शरद पवार जी तो है ही है। मैं कुछ डरने वाला नहीं या कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए मैंने कहा कि आप जिस राज्य से पर्सनल अटैक, ये क्यों आपने पर्सनल नहीं, ये स्टेट के लिए है, स्टेट के लिए मैं बोल रहा हूं। एक बात तो आपको माननी होगी, महाराष्ट्र में अभी जो बात हुई, जिसको मराठी में कहते गारपीट, हाँ, किसान तो बर्बाद हो गए, और आपने भी देखा, वो कवर किया है। शरद पवार जी वहां गए, मुख्यमंत्री वहां गए, सब लोग देख के रहे, आगे क्या? आज तक जब भी सूखा या कुछ भी आपत्ति आई, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल्ली में महाराष्ट्र की आवाज नहीं बुलंद की, आवाज ही नहीं उठाया, क्योंकि ये सारे लोग डरते हैं। और आप वहां बंगाल में देखो, ममता जी जाती है, नीतीश कुमार जाते हैं, पैकेज लेके वापस आते। ऐसा कभी आपने देखा कि महाराष्ट्र से कोई गया और वहां से महाराष्ट्र का जो अधिकार है वो लेके आ गया? इनकी हिम्मत ही नहीं होती वहां जाकर कुछ बोलने की। और हमेशा हमारे जो सांसद है वो आवाज उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं है। जैसे किसान, ये जो शरद पवार जी है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, और उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये आती है ये बात कि किसान, तो सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है, कैसे चलेगा? आपने ये भी कहा है सामना में कि नितिन गडकरी और शरद पवार की कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली इक्वेशन है। बीजेपी शुड बी केयरफुल ऑफ सच लीडर्स जो कांग्रेस एनसीपी के साथ उठते बैठते हैं। वो नितिन जी ने कहा। पवार जी तो आपके भी दोस्त माने जाते हैं। मेरे नहीं, मेरे पिताजी के। आप उनको दोस्त मानते हैं? जनरेशन गैप है ना। अभी उन्होंने कहा कि राहुल उनके जनरेशन का नहीं है, तो ये भाई जनरेशन गैप होगी तो मैं क्या करूं? जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे वसंत दादा जी को धोखा देकर, तो बाला साहब ने उनको कहा था कि मुझे आनंद है कि मेरा मित्र मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जिस तरीके से बन गया वो मुझे पसंद नहीं है। उनकी दोस्ती एक अलग थी, लेकिन सबसे ज्यादा बाला साहब ने उनको क्रिटिसाइज किया। उनकी दोस्ती महाराष्ट्र के बीच में नहीं आने दी उन्होंने। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे योर इक्वेशन विद शरद पवार? जैसे सामने से अगर शरद पवार यहाँ आ जाए तो और क्या कहेंगे? हर इलेक्शन में बात चलती है, शरद पवार स्विच साइड्स, ये भी बात हर इलेक्शन में चलती है। You said that नितिन गडकरी is friendly with शरद पवार। नितिन गडकरी कहते हैं so what, मेरे बहुत दोस्त हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि मैंने नहीं बात की, उन्होंने बात कही है। तो इस दोस्ती में आपको क्या खराब लगता है? दोस्ती की जगह पे रहने दो, लेकिन दोस्ती का असर राजनीति में और लोगों के जीवन पर नहीं होना चाहिए, बुरा असर। शिवसेना इज फील्डिंग कैंडिडेट्स आउटसाइड महाराष्ट्र ऑल्सो। कुछ जगह पर है, कुछ जगहों पे। आपने नागपुर में नहीं किया नितिन गडकरी के खिलाफ? नहीं, मैंने साफ साफ बात कही है कि नितिन जी का और मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। पर आप नाराज तो हैं? नाराज हूं मैं। आपने उनको व्यापारी बोला है कि इन्वेस्टमेंट डाले बिना कैपिटल बनाते हैं। सुनो, नाराजी और दुश्मनी एक बात अलग है। नाराज में था, आज भी वैसे कहे तो थोड़ा सा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं दुश्मनी करूं उनसे। वो तो मेरे सहयोगी पार्टी के नेता है। सिर्फ जो बात पसंद नहीं आई वो मैंने कही, आगे भी अगर नहीं आएगी तो मैं बोलूंगा। लेकिन आपने इतना कंफ्यूजन क्यों था वेदर शिवसेना वुड बी फील्डिंग कैंडिडेट्स इन वाराणसी और नॉट? आपको याद है कि सुबह बयान आया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिवसेना विल फील्ड अ कैंडिडेट, फिर क्लैरिफिकेशन आया दैट वी विल नॉट। वाज़न्ट दिस द वे ऑफ शिवसेना फ्लेक्सिंग इट्स मसल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगी तो मैं खुलेआम बोलूंगा ना। ये ऐसी पीछे से छुरा भोंकने की आदत मेरी नहीं है, और ना ही मुझे वैसी जरूरत है। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से बाहर कई राज्यों में शिवसेना काम कर रही है। केरला में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो ये सारे लोग हैं, हम उनको एकलव्य कहते हैं।
ये बेचारे कभी भी बाला साहब को मिले नहीं है, ज्यादा मिले नहीं, सिर्फ हिंदुत्व के लिए बाला साहब को अपना भगवान मानते हैं और काम करते हैं। और हमेशा क्या होता है कि कुछ भी कहीं इलेक्शन आती है, जैसे राजस्थान, तो नहीं भाई वसुंधरा जी को डिस्टर्ब नहीं करना, गुजरात में नरेंद्र भाई को डिस्टर्ब नहीं करना, मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी है, छत्तीसगढ़ में रमन जी है, तो ये इतनी तो लिमिटेशन हमने अपने आप को पाबंदी लगाई है। सवाल ये उठता है, आज ऑलमोस्ट 20, 25, 30 साल से कुछ लोग काम करते आ रहे हैं, तो बोलते कि साहब फिर हम करें क्या? तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, जहां पे बीजेपी जीत रही है वहां बीच में सिर्फ टांग गाड़ने का काम मत करो, लेकिन अगर आपने कंसिडर किया वाराणसी में कैंडिडेट फील्ड करना? नहीं, मैंने नहीं किया था। तो पार्टी की तरफ से वो बयान क्यों आया था? पार्टी के नहीं, वहां के लोग जोश में, कार्यकर्ता तो जोश में रहते हैं, उनका जोश भी पार्टी के लिए और लोगों के लिए उनका भी एक रक्षण करने की आवश्यकता। पर संजय राउत जी ने अनाउंस किया था। यस, वो किया था, क्योंकि पहला एक था कि कहां से आप कहां से लड़ोगे, तो एकदम लोग उठकर खड़े, हम भी ये लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। तो जोश में आए, सारे लोग जोश में आए। लड़ना तो सब जगह से, वो जहां भी काम करते हैं वो लड़ना चाहते हैं या चाहते थे, लेकिन मेरा कर्तव्य ये बनता है कि भाई जिस लोगों के साथ हम हैं, पार्टी हमारी है, तो उनको अड़चन नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैंने उनको इजाजत दी है कि जहां से बीजेपी को तकलीफ नहीं होगी, ऐसी जगह पे आप लड़ो। अगर चुनकर आते हैं तो अच्छा होगा। आपने ये भी बात, और साथ में मैंने ये बात राजनाथ जी को भी कही है कि राजनाथ जी, ये हमारे कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता है, आप भी अपने लोगों को कहो कि भाई इनको भी विश्वास में ले लो, और ये भी काम तो करते हैं ना। आपने दो बातें अपनी सामना में रखी हैं। एक की शंकर सिंह वाघेला जब ज्वाइन करना चाहते थे, तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे आपको, क्योंकि आप बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं। यू गिव दिस एज एन एग्जांपल ऑफ योर लॉयल्टी। और दूसरी बात आपने रखी है कि शरद पवार एनडीए में आना चाहते थे, आप लोगों ने मना किया। इसके बारे में बताइए थोड़ा। शंकर जी का तो खुलासा हुआ है। शरद पवार जी, जैसे आप ही ने कहा अभी कि हर इलेक्शन में वो कहाँ जाए, ये बात उठती है, और उनकी एक खासियत है, वो इलेक्शन के पहले हर दरवाजे थोड़े खोलकर रखते हैं। तो भाई यहाँ तो यहाँ, वहां तो वहां, वहां तो वहां। आपको लगता है इस बारे भी ऐसा कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, गोपीनाथ जी मुंडे है, और हमारे साथ अभी जो महायुति में लोग हैं, रामदास जी आठोले है, राजू शेट्टी है, तो इन लोगों ने, महादेव जानकर तो बारामती से लड़ रहे, तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर जिसके साथ हम लड़ रहे हैं उन्हीं को साथ लेकर लड़ना है, तो फिर हमें माफ करो। तो आप, क्योंकि ये तो इन्होंने तो अन्याय किया है महाराष्ट्र पर। आप कह रहे हैं कि इस बारी भी शरद पवार ने कोशिश की कि आप लोगों के एनडीए के करीब आए? कोशिश तो की। किस तरह से कोशिश की? अभी सब सारी कोशिश क्यों बताऊं? और आप कह रहे हैं कि आपका वीटो आया और बाकी लोग, सिर्फ मेरा नहीं, हमारे महाराष्ट्र के बाकी सारे, इवन बीजेपी के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, गोपीनाथ जी मुंडे, और जैसे मैंने कहा राजू शेट्टी जी है, महादेव जानकर है, रामदास जी आठोले तो वहां परेशान होकर हमारे साथ आए, तो बोलते कि वही अगर झेलना था मुझे तो मैं यहाँ क्यों आ गया। तो आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी, जैसे हर चुनाव में होता है, शरद पवार जी ने कुछ फीलर्स भेजे और आप लोगों ने मना कर दिया? बिल्कुल। और शरद पवार इसको मानेंगे कि डिनाई करेंगे? कैसे मानेंगे कैसे? इसी को तो राजनीति कहते हैं ना। तो आपको डायरेक्टली फीलर्स भेजे कि लोगों के थ्रू? अभी देखो, ये सारी बातें हैं, ये एक लिमिट तक मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन इतना तो मैंने साफ बता दिया कि सिर्फ मैं नहीं, गोपीनाथ जी मुंडे, रामदास आठवले, राजू शेट्टी, महादेव जानकर, इन सारे लोगों ने मना किया। पर वो क्या चाहते थे कि पोस्ट पोल कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि प्री पोल? इंटरव्यू के बाद बताता हूँ आपको। थोड़ा तो इशारों में कुछ भी, जैसे आप जैसे आप चाहें, प्री पोल, पोस्ट पोल, लेकिन लेकिन मैं नहीं मानता कि अब उनकी पार्टी के कुछ सांसद चुनकर आएंगे, भले एक या दो आए तो आए, वो इसलिए क्योंकि लोग सचमुच परेशान हैं, तंग है, और वो अब इन लोगों से छुटकारा चाहते हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि भाई उद्धव ठाकरे प्रिटेंड्स टू बी डिस्टेंट फ्रॉम शरद पवार, लेकिन जब बाला साहब की मेमोरियल की बात आई थी तो वो उन्हीं के पास भागे गए थे। अच्छा किया उन्होंने ये सवाल उठाया, क्योंकि 17 नवंबर बाला साहब का पहला स्मृति दिन, लाखों लोग आए थे, गांव से आए थे, बहुत गरीब लोग थे, कैसे आए पता नहीं, रो रहे थे, सबकी भावना बहुत ही तीव्र थी। शरद पवार साहब भी आए थे, लेकिन अपने घर के सामने होने के बावजूद भी राज नहीं आया था, और इसीलिए मेरी और शरद पवार जी के बीच में जो भी कुछ बात हुई वो समझ नहीं सके। मैंने साफ शब्दों में कहा है कि बाला साहब मेरे पिताजी के लिए किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। और जब बात उस वक्त चली कि शरद पवार जी ने मुझे पूछा कि वो उद्धव स्मारक का क्या हो गया, तो मैंने कहा मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा,
गवर्नमेंट के देखो कैसे है कि म्यूनिसिपालिटी उन्होंने और भी कहा है कि बहुत सारे लोगों को भूखंड बेचे, तो बेचा कैसे जा सकता है भूखंड? ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है? अगर म्यूनिसिपालिटी अपने आप ऐसे भूखंड बेचने लगेगी तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या इनके पार्षद नहीं है वहां पे? फिर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की परमिशन के बाद वो प्लॉट है मिलता है। तो मेरी जो बात अधूरी थी वो यही थी को पवार साहब ने मुझे पूछा कि तो फिर ऐसे में मैं कुछ करूं, तो ना आपकी मर्जी, मैं नहीं आपके पास आऊंगा। आपने क्यों, व्हाई वर यू अगेंस्ट हिम कमिंग टू द एनडीए? अगर मैं आपकी पवार साहब की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं कहता हूं कि चलो इसके लिए हम सारे लोग और एक बार सोचने के लिए तैयार है, लेकिन एक मेरी शर्त है, जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके घर में जाकर उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी अभी क्या कहूँ, उनकी पत्नी, उसका सौभाग्य छीना गया या उसके पिताजी है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनको पूछो कि आपको चलेगा कि आप ये साथ में आएंगे? तो इरिगेशन की बात है, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कौन कर रहा है इंक्वायरी? बात हवा में रह रही। आपने ये क्रिटिसिज्म भी उठाया है कि बीजेपी ने एलाइज की हैंडलिंग इतनी स्मूथ नहीं रही जितनी रहनी चाहिए थी। इनफैक्ट आपके एडिटोरियल में काफी डिटेल्स हैं कि भाई किस तरह हरियाणा में कंफ्यूजन हुई, किस तरह आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन हुई। यू हैव रेज्ड दीज एग्जांपल्स। आपको लगता है कि बीजेपी कुछ गलतियां कर रही है एलाइज मैनेजमेंट इन बिल्डिंग एलाइज विद ओल्ड एंड न्यू? मैं एक बात कल भी मैंने कही है कि हम बीजेपी के मित्र हैं और मित्र का कर्तव्य बनता है कि अगर अपना दोस्त कुछ गलती कर रहा है तो उसको सावध करना। क्या गलती कर रहे हैं? नहीं, अगर क्योंकि आपने लिखा है इसके बारे में, जो मैंने कहा है ना कि भाई आपके साथ और लोग आना चाहते हैं तो उनके साथ जो पहले अनुभव आया है वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि बीजेपी की जो एक डबल गेम है, जैसे महाराष्ट्र में डबल गेम नहीं कि आपसे अलायंस और राज ठाकरे से बातचीत, आंध्र प्रदेश में आपने कहा एनटी रामाराव की डॉटर और टीडीपी। एक मिनट, बीजेपी ने महाराष्ट्र में राज के साथ बात नहीं की है, नितिन गडकरी ने। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक व्यक्ति मतलब पार्टी नहीं हो सकती। पर आपने ये कहा कि गलतियां हुई हैं अलायंस के, जिस तरह से अलायंसेस बिल्ड कर रहे हैं, क्या गलती हुई है बीजेपी की? वो मैंने लिखा है ना। यू आर सेइंग डबल गेम। डबल गेम नहीं, कुछ लोगों के साथ जैसे एक भरोसे की बात होती है। अब बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक मजबूत सरकार हम दे सकते हैं, ये विश्वास लोगों के मन में हमने निर्माण किया है। तो ऐसे वक्त जो पहली गलतियां अगर हुई होगी, कुछ भी कारण हो सकता है, शायद जानबूझकर नहीं हुई होगी, और राजनाथ जी ने कहा है कि भाई ऐसी बात होती तो शिवसेना हमारे साथ कैसे रही इतने साल, बाकी सारी पार्टियां चली गई लेकिन शिवसेना नहीं गई। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं। आपने ये और इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाई अब सब लोग जो आएंगे उनको हम ऐसे दोस्ती के बंधन में ले लेंगे कि वापस वो जाएंगे नहीं। आपने ये भी कहा कि अडवाणी जी के साथ जिस तरह वो सीट की कंट्रोवर्सी हुई थी वो ठीक नहीं। अडवाणी जी के लिए मेरे मन में एक भावना है, जरूर है, और वो मैं छुपाऊंगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूं और किसी की साइड ले रहा हूं। देखो, आज से 25 साल पहले की बात अगर मैं कहूं तो 25 साल पहले मैं भी 25 साल का था, और तब बीजेपी के साथ हमारा परिचय हुआ। तो उस परिचय के वक्त अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद जी थे, बाला साहब थे, इन सारे दिग्गजों ने ये युति की है। और तब किसी का सपना भी नहीं था कि प्रधानमंत्री बनो, हम दिल्ली में सत्ता हासिल करेंगे। सिर्फ हिंदुत्व एक सोच थी और उसमें ये गठबंधन हुआ। अडवाणी जी ने बहुत ही मेहनत की थी, रथ यात्रा निकाली, सब कुछ किया, तो उनका भी आदर हो रहा है, आदर होना चाहिए। और बुजुर्ग, मैं हमेशा यही कहता हूं, जैसे आपने बात की मनोहर जोशी जी है, मैं ये नहीं भूलूंगा कि उन्होंने मेरे पिताजी का साथ निभाया है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने इंसल्ट किया? इंसल्ट नहीं किया। वो बातें कितनी बातें सच होती है जो अखबारों में आती है, और उसमें असलियत क्या है, और बाकी हिंदुत्व की आपने बात किया। बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब हिंदुत्व के बारे में इलेक्शन स्पीचेस में तो बात नहीं करते। नहीं कर सकते। वो क्यों? कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, पर एज अ पॉलिटिकल एजेंडा आपको लगता है कि आपको लगता है बीजेपी स्टिल परस्यूइंग हिंदुत्व? मेरे पिताजी ने जो अनुभव किया है, बाला साहब ने जो किया है, उनको तो वो तो कभी जिंदगी में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और उन्होंने तो शपथ ली थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उनको चुनाव लड़ने से तो मना किया था, साथ में उनका वोटिंग राइट भी छीना गया था 6 साल के लिए। क्यों? हिंदुत्व का प्रचार किया। मतलब हिंदुत्व के बारे में बोलना अपने देश में उस वक्त गुनाह हो गया। तो कोड ऑफ कंडक्ट है भाई, चलो ठीक है। इलेक्शन बट डू यू फील हिंदुत्व इज स्टिल सेंट्रल टू बीजेपी's एजेंडा, कि आपको लगता है वो उससे दूर हट चुके हैं? नहीं हट सकती वो।
नहीं हट सकती, नहीं हट सकती और हटी भी नहीं है। मेरा हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब हम जो हमेशा कहते हैं, हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयत्व है। देश के लिए, देश की सुरक्षा की बात है, देश का विकास भी है, और साथ में भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के ऊपर अन्याय करें या दूसरे धर्म के लोग हमारे देश में ना रहे। ये बात हमने कभी कही नहीं। लेकिन बाला साहब, लेकिन एक व्यक्तिगत बाला साहब की जो डिसइंफ्रेंचमेंट हुई थी वो हेट स्पीच को लेकर हुई थी, हिंदुत्व को लेकर नहीं। एक सेकंड, जो बात मैं कह रहा था कि सिर्फ हिंदू इस देश में रहेगा, बाकी कोई रहेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अपना चेहरा होता है, होना चाहिए कि भाई मैं कौन हूं। पर मॉडर्न इंडिया में हिंदुत्व एज अ पॉलिटिकल स्लोगन चल सकता है? मॉडर्न इंडिया का चेहरा बताओ ना, कौन, कैसे, क्या? मॉडर्न इंडिया को भी कुछ तो एक ये तो चाहिए। मिस्टर मोदी आजकल सिर्फ विकास की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात तो करते हैं क्यों ना करें? नहीं करते। मैं कह रही हूं उनकी कैंपेन स्पीचेस आप सुने तो जो 90s में बीजेपी का एजेंडा था वो 2014 में तो नहीं बराबर है। लेकिन आज के दिन अपना देश, मैं और एक सवाल आपको पूछता हूं, उस वक्त इंडिया ने एडवर्टाइजमेंट की थी शाइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया शाइनिंग, हाँ, सारे लोगों ने उसकी आलोचना की थी, ये क्या है, कैसे इंडिया शाइनिंग, शाइनिंग इंडिया, ये वो फील गुड कहाँ है, फील गुड। लेकिन वो ये बात तो सच है कि उस वक्त बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस देश में आ रहे थे, अपना देश एक सुरक्षित माना जा रहा था। अब आज अपने देश की जो पहचान है, पहले तो अपने देश की पहचान बदलनी होगी। अपने देश की जो आज बदनामी हुई है पूरे दुनिया में, वो ऐसे कहते कि ये करप्ट देश है और इस देश में महिला तो सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चोरी हो रही है। तो टूरिस्ट भी आना कम हो गए हैं, इन्वेस्टर्स तो आना तो बंद हो गए, लेकिन अपने देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बाहर भागना शुरू हो गए। लेकिन जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, जो 90s में बीजेपी की आइडेंटिटी थी, आप मानेंगे कि बीजेपी की अब आइडेंटिटी वो नहीं रही? एक बात उस समय की जरूरत होती है, और ऐसा आपका मानना हो कि बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, वो गलत है। और याद दिलाना चाहूंगा मैं, 95 के पहले, 95 में तो हमारी सरकार महाराष्ट्र में आई थी। बाला साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज भी मुझे वो याद है, और बाला साहब को ऐसी सवाल पूछा, हिंदुत्व का मतलब क्या है? तो बाला साहब ने कहा था कि मेरा मुख्यमंत्री, आप ये मत समझो कि मेरा मुख्यमंत्री कंधे पर भगवा लेकर ऐसे घूमते रहेगा, वो तो विकास का ही काम करेगा, विकास ही करेगा। और किया। हमारी सरकार जब थी तो आप क्या सोचते हैं कि हिंदुत्व हमने कितना किया? लेकिन हिंदुओं को भी एक सुरक्षित महसूस होना चाहिए अपने देश में, खास कर जब ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे 15 मिनट दे दो, पुलिस को बाजू में हटाओ, मैं पूरे देश में हिंदुओं को खत्म करूंगा, कैसे चलेगा? तो और यही दुख की बात है, तो हर रिलीजन से होते हैं ना। आपने असाउद्दीन ओवैसी की बात की, दूसरी तरफ भी बहुत हेट स्पीचेस हैं। बाला साहब की खुद की जो डिसइंफ्रेंचमेंट, बाला साहब ने कभी ऐसे नहीं कहा था कि मैं सारे के सारे मुसलमानों को खत्म करूंगा। लेकिन इन लोगों की हिम्मत कैसी होती है? सरकार की एक बात होनी चाहिए, सरकार का दबाव होना चाहिए कि अरे ऐसे अगर मैं करूं तो मेरी तो बत्ती गुल हो जाएगी। आज आपने अपने एडिटोरियल में एक मॉडर्न डे औरंगजेब की बात की है, आपने नाम नहीं लिया, किसकी बात कर रहे हैं? जो भी वो काम करेगा उसकी। औरंगजेब का मतलब क्या है? औरंगजेब ने Are you referring to राज ठाकरे? नहीं, औरंगजेब की जो एक बात है, उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कहा था कि ये जो यहाँ के मराठे हैं वो बहुत ही शूर है और इनको तो पराक्रम सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ आप इनके बीच में अगर कुछ मनमुटाव की बात करें या ऐसी कुछ दुहीचं बीज ज्याला म्हणतात, वो अगर आप फेंको तो वो इतनी बात फैलती है कि पूरी दौलत तबाह कर देती है। और कांग्रेस की जो नीति है कि तोड़ो फोड़ो और राज करो। अभी इसमें जो राज करो ये जो बात है वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन तोड़ो फोड़ो और राज करो। नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए कहते हैं शहजादा। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के जितने एलाइज हैं और बीजेपी की खुद की ही जब डिनेस्टी की बात आती है तो हर पार्टी में है। कांग्रेस ये कहती है, आप इस बात को मानेंगे? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके खुद के बेटे भी पॉलिटिक्स में हैं। अकाली को देखा जाए पंजाब में तो वहां भी यही हाल है, यहाँ भी प्रमोद महाजन की बेटी अब है, प्रिया दत्त है। आप मानेंगे कि जो डिनेस्टी का मामला है ये सारी पार्टीज को अफेक्ट करता है? शहजादा का मतलब क्या है? इज आदित्य ठाकरे ऑल्सो शहजादा इफ राहुल गांधी? अगर वो राहुल गांधी जैसे बर्ताव करे तो, राहुल गांधी जैसे कर रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का कोई महत्व नहीं रहा है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक जीआर निकाला था या कुछ करने जा रहे थे वो, तो जब प्राइम मिनिस्टर बाहर गए थे, यूएस गए थे या कहीं गए थे, तो राहुल गांधी ने वो फाड़ कर फेंक दिया। पर शहजादा फिर शहजादा का मतलब यही हो गया ना कि आप कोई भी हो, मैं शहजादा हूं, जो मैं कहूंगा वही होना चाहिए। ये शहजादा है।
डिनेस्टी नहीं अगर मानते आप आदित्य इसमें। ऐसी You बात don't करे think तो वो गलत dynasty है। means शहजादा? नहीं, ये बात उनका जो बर्ताव है, शहजादा कहता है कि आपने आपको शहजादा मानता है क्या तू? शहजादा का मतलब क्या है कि मेरे अपनी मनमानी करना। तो ये ये जो मनमानी कर रहा है। बार बार सवाल उठता है कि ये डिनेस्टी का, कि आउटसाइडर्स की जगह नहीं है, एक फैमिली एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिक्स हैज बिकम अ फैमिली एस्टैब्लिशमेंट। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? मेरे पिताजी ने जो बात हमेशा कही है कि ये लोगों के ऊपर है। जब मेरी बात थी तो उन्होंने कहा मैं तुझे लोगों के ऊपर ला दूंगा नहीं, लेकिन अगर लोगों ने स्वीकार किया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। और इसलिए मैंने जब मेरा दसरा रैली में मेरा पहला भाषण मैंने किया था, स्पीच दिया था, तो मैंने कहा कि मैं तब तक ही आपके पार्टी के प्रमुख पद पर रहूंगा जब तक आप चाहते हो। प्रकाश सिंह बादल की एक स्टेटमेंट आई थी दैट अरुण जेटली कुड बी अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा है दिस इज अ रॉन्ग टाइम टू डिस्कस ऑल दिस। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इज योर ऑब्जेक्शन टू द चॉइस जो उन्होंने दिया है कि चॉइस का नहीं, की कॉन्सेप्ट? जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अभी तो प्रधानमंत्री हमें बनाना है, बाद में है ना, समय है, सोच समझकर बने। तो ये सब चीज की बात ही नहीं होनी चाहिए। बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो अपना फोकस गवर्नमेंट लाने के लिए होना चाहिए, और गवर्नमेंट सरकार आने के बाद बाकी की जो बातें होगी। अगर एनडीए जीतती है, अगर एनडीए की सरकार बनती है, व्हाट रोल विल उद्धव ठाकरे प्ले इन दिल्ली? डू यू सी योरसेल्फ मूविंग टू नेशनल पॉलिटिक्स? जहां मैं हूं, खुश हूं, लेकिन मेरे जब भी देश की बात आएगी, महाराष्ट्र की बात आएगी, तो मेरी भूमिका अहम रहेगी, इतना मैं कह सकता हूं। पर आपकी पार्टी के लोग, डू यू एक्सपेक्ट देम टू बी? पहले सरकार तो बनने दो, वो तो होनी चाहिए, और वो होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार तो आएगी और अच्छा काम करेगी। आर यू कंसर्न कि बीजेपी में एक तरह से एक कैंप वॉर चल रही है? एक तरफ एलके अडवाणी, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्रिटिसिज्म रेज करने वाले लीडर्स माने जाते हैं। आर यू कंसर्न अबाउट दिस? मैं उसे, आपने क्या कहा? कैंप वॉर। हाँ, कैंप वॉर नहीं समझता, लेकिन एक जनरेशन, पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन की हाथ में अब सब बागडोर वो संभाल रही है। राजनाथ जी आए हैं, नरेंद्र भाई आए हैं, सुषमा जी भी उसी दर में है। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई बड़ी बात है इसमें। आज तक बहुत सारा अनुभव बीजेपी ने भी लिया है, शिवसेना ने भी लिया है। तो जनरेशन, जब नई जनरेशन आती है तो पहली जनरेशन अपना अनुभव उनके पास वो देना चाहती है, और वो जैसे मेरे पिताजी ने मुझे दिया वैसे बीजेपी में भी होगा। तो यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने कुछ वहां ऐसे लोग नहीं है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। पर नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहते हैं कि भाई वो नहीं तो बीजेपी कहीं नहीं। आज देखो, एक बात सच है कि नरेंद्र भाई का चेहरा लोगों ने स्वीकार किया है। अगर लोगों ने स्वीकार किया है और चेहरा अच्छा है, एक भरोसेमंद चेहरा है, यही बात मैंने उस वक्त दिल्ली में मैं जब आया था, जून जुलाई की बात है, तो मैंने कही थी कि आज देश के सामने ऐसा भरोसेमंद चेहरा नहीं है। तो सारे लोगों ने पूछा कि ये नहीं क्या, वो नहीं। मैंने कहा कि जरा रुको, पहले बीजेपी को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने दो, फिर मेरी राय मैं बताऊंगा। तो उसके बाद बीजेपी ने जब कैंडिडेट नरेंद्र भाई के रूप में डिक्लेयर किया तो तुरंत मैंने उनको सपोर्ट किया। तो पहली बात ऐसी है कि टीम को कैप्टन होना जरूरी है। आप मैच खेलना चाहते हो, जीतना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन ही नहीं है तो होगा कैसे? उद्धव ठाकरे, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। So Uddhav Thackeray ruling out any immediate reconciliation with Raj Thackeray, also making a really contentious allegation about Sharad Pawar. Sharad Pawar is rubbishing these remarks, calling them the joke of the year in this interview with my colleague Tejas Mehta. Joining us here in Mumbai is India's Agriculture Minister and the NCP's President, Mr. Sharad Pawar. So I know you've answered this question earlier too, but today itself, this morning itself, Uddhav Thackeray gave an interview to NDTV and he said that Sharad Pawar sent feelers to the NDA leaders that he wants to quit the UPA and join the NDA. How would you respond to that, sir? You see, I can say that it's a joke of year. I was knowing very closely, intimately, late Babasaheb Thackeray. He was a mature person. I feel sorry that the person who has taken such a responsibility to run organization which has been set up by Babasaheb Thackeray, the level of thinking of that leadership is this: making irresponsible statement, immature statement, and that is the reason
that his organization day by day is going down and his colleagues are deserting him. He will make any statement against anybody. That is his specialty. Nobody takes seriously. Question of mine to take seriously doesn't arise. In fact, he goes a step ahead and says the leaders from Maharashtra itself, be it Uddhav Thackeray himself or Gopinath Munde, they all blocked your entry into the NDA. Otherwise, you would have been part of the NDA. This is recently, Again, as of I now. reply that again and again. You see, last 15 years, they are making several things, Mr. Gopinath Munde and others. But in the last 15 years, we are continuously working Congress and we together. We are defeating them. We are running government here. That's why they become frustrated. And that's why they are making this type of statement. There is a total confusion in their mind. They are unable to tell any positive thing to the people of the state. And that's why they are day and night, only one program which they have taken to make this type of irresponsible statement and try to achieve something, but they will never achieve. And finally, as we end our special election series Chai Stop, where we discuss the big political question of the day over a cup of chai. Tonight, from an Irani cafe, we're asking what the film stars make for good politicians. Do swear in the name of God. The question that I asked, क्या ऐसी जगह पर पुलिस की गश्त Our chai stop today is at one of the oldest Irani cafes in Mumbai suburbs. We're actually coming to you today from Mehboob Circle, right opposite Mehboob Studio. And on the program today, we're asking whether a city where everyone used to come with dreams of being part of the glitter and the glamour of Bollywood is now seeing a reverse migration. Why is it that so many film stars are actually wanting to be part of politics? Is this a reverse migration from Mumbai to Delhi? Do film stars make good politicians? Well, we're at the Good Luck Cafe, and the Good Luck Cafe has existed from before independence, before Mehboob Studio was even built, and of course over Ban Maska Chai and Keema Pao. We're going to be asking people here at our chai stop whether film stars make good politicians. But first, let's talk to the owner here for a little bit of a sense of history. Tell us a little bit about the Good Luck Cafe. It's a lovely, lovely name. Thank you. Actually, this place was before even I was born. I don't know. My father had bought this establishment to being and all. And this place is even before independence, and also prior to even Mehboob Studio was built in front of my father, in fact. And Ban Maska Chai is of course the big thing here. Yeah, people like it. Thankful to the people for it, and we are continuing with it. Well, it's a lovely old tradition of Mumbai, the Irani cafes, and at this chai stop over Ban Maska Chai, is it that film stars are finding politics more interesting than the glamour of the big screen, or is it that glamour helps them be better politicians? What does this trend signify? Let's get a sense from people here. Let's just ask people at random. Like we said, there's Keema Pao being enjoyed here on this table. Now, you're all here from Mumbai. There was a time when people came here to become film stars. Now, film stars want to leave and become politicians. Do you think this is a good thing? I basically think that politics is a field where every Indian should get a chance, whosoever it may be, and it should not be judged on the basis of the profession they are into. You're saying कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से profession से? Exactly. मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक they do something good for the country. That is most important. But what has been the record? Because we've seen lots of film stars even in the past from the beginning. Amitabh Bachchan, Dharmendra, Rajesh Khanna, Govinda, now Hema Malini, Nagma, Kiran Kher, Gul Panag. My God, the list is endless, isn't it? Do you think that what you've seen of film stars in politics so far has been impressive?
Ma'am, basically what I think is, as you talk about Govinda, Dharmender, Hema Malini, they are joining politics after their film career is almost to an end. So You're saying कि जब यहाँ खत्म हुआ तब कुछ और ढूंढ रहे हैं। exactly, ma'am. So I think it raises a concern that whether they have included politics as their retirement plan or something like that, and that's what I think. But is there something about film stars that gives them an advantage in politics? Is of course instant recognition. Yeah, of course it gives them an advantage, but I don't think it's fair to generalize and say that they're just people with pretty faces. Because on one hand, we have Govinda, who has travelled by train just for the publicity stunt, and Rakhi Sawant too. But we also have Jaya Lalita, who's... Yeah, I forgot about Rakhi Sawant. Even like, I mean, this is an election where Rakhi Sawant is contesting. Malika Sherawat, I think, sang a song for Narendra Modi, if I'm not wrong. On his birthday, and then on his birthday, Kamal Khan and all. But then we also have people like Jaya Lalita, who've done a good job for Tamil Nadu itself. So I don't think it's fair to generalize, but they all should get it. So MGR and Jayalalitha are interesting examples. Now we don't even remember that actually they were once film stars because their transition was so smooth. What do you think? I think they shouldn't be given a chance to join politics. Should or should not? Should not be given a chance to join politics. Why? Because a lot of film stars just join politics for publicity stunts, and even political parties, they take them just for publicity. Like Bappi Lahiri recently came on TV. He's kind of related to Bollywood, and what he did was he sang a song for Narendra Modi, and you know that's just a way to publicize your party properly. And so you don't think it's a good idea? No, I don't think it's a very. आप क्या सोचते हैं? इतने फिल्म स्टार्स अब राजनीति में आ रहे हैं. एक जमाना था मुंबई में लोग फिल्म स्टार बनने आते थे. अब मुंबई छोड़ के लोग राजनीति में हिस्सा लेना चाह रहे हैं. राजनीति एक धंधा बन चुका है मेरे हिसाब से. पर्सनली कहने गया तो हर कोई पैसे के चक्कर में आता है, पावर के लिए आता है. काम कोई नहीं करता है. एवरीवन इज सेल्फिश. पैसों के लिए आते हैं. मुझे पावर चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे अपने अपने काम निपटाने हैं. तो ये जो फिल्म स्टार्स आ रहे हैं राजनीति में, आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये गलत है. इनको मौका देना भी नहीं चाहिए, इनको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए. ये सिर्फ एक स्टंट है जो पब्लिक को ध्यान घुमाने के लिए कि हमारे साथ अमिताभ बच्चन है, हमारे साथ ये हीरो है, वो हीरो. तो आपको गलत लगता है? There's a young person here wanting to come in. What do you think? There are credible as well as frivolous person joining politics these days. There is no harm. If in India, people having criminal charges on them are allowed to contest election, what harm if a Bollywood actor enter? So you're saying no harm then? There's no harm, but it's better. I mean, better than the criminals joining or the politicians becoming criminal. I feel it's better that actors who with a clean background come and participate. What do you think? According to me, if so many politicians, new actors come in, you will have new people with new thoughts and new, because they have come all the way with their hard work. So if they know the ground reality, so really mixed views here. What do you all think? Do you think that film stars joining politics? क्या लगता है आप लोगों को? You're not interested in the elections or in film stars? No. Election I like it, but not regarding the film stars. So you're not interested at all in film stars. So sometimes, very interesting. We thought in Mumbai everyone's interested in film stars, but there are people who say they're not interested in film stars at all. Let's get a sense from the table here. What do you think? Well, if we think that populist measures like getting film stars into political parties works in an urban setting like Mumbai, I don't think people are really that naive in such an urban setting to... You think it won't impress people beyond a point? So the general perception is that politicians are not doing this because they really want to contribute to society. It's like when they are no longer popular in the cinema or in the Bollywood industry, so they move on to politics. So it's not their first choice. Yeah, I think it remains to be seen whether they're serious about it. Like if they lose in one election, whether they come back again and try to really make a difference. That's right. It's about their intentions. It's important to see that they follow through, especially so if you see someone like Gul Panang, she is not only is she an actor, but she's also been a social activist before. So it depends on what. It depends. It's important. Their agenda is very important. Okay, let's get a sense here. Yes. Ma'am, what I think, at one hand we are talking about shunning VIP culture from our politics, and on the other hand we are giving chance to the celebrities who are already into celebrities. And so you're saying it's a kind of VIP culture? Yeah, they will promote VIP culture into our politics and they will be not accessible for general public. मैम आना गलत नहीं है, आए पर पहले पार्टी का काम करें, पार्टी में 5-6 साल गुजारें, पॉलिटिक्स सीखें और फिर इलेक्शन लड़े. ऐसा ही जाके फिर प्रॉब्लम. तो एकदम शॉर्टकट नहीं मिलना चाहिए. Yes, what do you think? I think we have been stereotyping the basic concept of politicians, and the basic need of a politician is that he should be a good policy maker irrespective of from which field he is. So the background is irrelevant, the performance matters. Yeah, correct. You shouldn't look at filmmakers as being different from your regular contestants. I mean, they have their upsides, they have their downsides, so it's okay. So some good apples, some bad apples. आपको क्या लगता है जो इतने फिल्म स्टार आ रहे हैं आजकल राजनीति में, यहाँ मुंबई से इतने लोग, आप क्या बोलेंगे?
मैं यही बोलूँगा कि आजकल बड़ी अच्छी मेहनत से काम कर रहे हो। आपको अच्छी बात लगती है? अजीब बात तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़रा से थोड़े कपड़े जो है वो कम हैं, हाँ। वो मुनासिब नहीं हमारे ख्याल से। अच्छा, और आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो इतने फिल्म स्टार जो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, आप क्या बोलेंगे? अच्छी बात है, बुरी बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड क्या है? अगर फिल्म स्टार रैली कर रहा हो तो आप ज्यादा देखना चाहेंगे कि नेता? ज्यादा देखना चाहेंगे। So the big question is that film stars, of course, may pull in the crowds. They may pull in the crowds, but do they actually get the votes? I have to start ending now. Your last thoughts? Yeah, ma'am. I just want to tell that actors should not make politics as their career. मतलब बॉलीवुड में हाथ नहीं सिक्का नहीं चला तो फिर पॉलिटिक्स में आके अपना करियर बना लो. Just for the money and popularity. They should enter in the politics for the service, to serve the people, common people. That's it. Okay, we have to end here. As you can see, very divided opinions here, but the consensus seems to be that the background matters less, that people will not be starry-eyed about stars. What matters is what sort of track record they have, and the perception shouldn't be that because your career in films has ended, you're now moving to politics. Either way, in Tinseltown, not necessarily a great sense of awe when it comes to movie stars who are now ready to move from stardust to the dust of the election trail. And that's it on the Buck Stops here this evening as we're on the road to 2014, broadcasting every night from a different part of the country, bringing you reports and voices straight from the field. See you tomorrow night at 9 p.m. Thanks for watching.